बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 1.5 मीटर लॉन्ग वायर carry the current of 5 ampere at right angle to the uniform magnetic field of 0.04 Tesla. Determine the force exerted on the wire. अब जो गिवन डेटा है पहले हम वो लिखते हैं डेटा। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ of the wire L is equal to 1.5 meter. Carrying a current in the wire, current in the wire I is equal to 5 ampere. And this wire is placed in a magnetic field of field B is equal to 0.04 Tesla. Angle, the angle between the length of the wire and magnetic field theta is equal to 90 degree. How much force is exerted? To find में force exerted on the wire. इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. Solution. Putting values in equation 1. Putting values in equation 1. F is equal to I की जगह पुट करेंगे 5, L 1.5, B 0.04, sin theta is equal to 90 डिग्री. अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई. F इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.04 इज इक्वल टू 0.3. Sin 90 is 1. 0.3 multiply 1, 0.3. And the unit of force is, this is our required. Question 2. A wire carrying a direct current of 10.0 ampere. Current is given 10.01 ampere is suspended यानी hanged लटका हुआ है 5.0 east between a house and a garage perpendicular to the earth's magnetic field. Magnetic field given है, length of the wire given है. What is the magnitude of the force that acts on the conductor? एक वायर जिसमें करंट 10.0 एम्पेयर करंट गुजर रही है
उस वायर का लेंथ 5.0 मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड, ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ टेस्ला है। तो इस कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लगती है। यहाँ पे भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। डेटा करंट इन द वायर 10.0 एम्पेयर, लेंथ of the wire 5.0 meter, angle theta 90 degree, magnetic field B 5.0 10⁻⁵ Tesla. Force, to find force on the wire, F. Formula F is equal to I L B sin theta. Equation 1, putting values in equation 1. F is equal to I की जगह हम पुट करेंगे 10, L 5, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन 90 डिग्री। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंट -5 0.0025 sin 91 0.0025 न्यूटन। F इज इक्वल टू पॉइंट को 3 डिजिट्स मूव करना, 1 2 3, 2.5, और क्योंकि 3 डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ तो -3 और न्यूटन। नाउ क्वेश्चन 3, a 10 centimeter wire. Question 3, data. Length of the wire, length L is equal to 10 centimeter. इस 10 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, यानी 0.1 मीटर। एंगल 10 centimeter wire at 30 degree, angle theta 30 degree. To a uniform magnetic field, magnetic field B, ये है 0.06 टेस्ला।
force F is 0.024 Newton. What is the current flowing through the wire? To find में current in the wire. अब इसमें I फाइंड करना। इसके लिए भी सेम फार्मूला है जो हम दो न्यूमेरिकल में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा, इक्वेशन। अब हम इसमें इस I को सॉल्व करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्यूशन। From equation 1, I is equal to F divided by ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। L B sin theta. Putting the values, force is 0.024 divided by length of the wire is 0.1. B is 0.06 साइन, अब एंगल जो है वो 30 है। 0.024 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 मल्टीप्लाई 0.06, 0.006 sin 30 0.5, 0.024 divided by 0.006 multiply 0.5, ये है 0.003। अब डिवाइड 0.024 divided by 0.003, 8। और करंट का यूनिट है एम्पेयर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 4, इफ द करंट through the primary coil changes from from -5 ampere to +5 ampere in 0.05 seconds, so that the induced EMF is 2.8 volt. What is the mutual induction? प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुई है -5 एम्पेयर से +5 एम्पेयर पर। तो इनिशियल करंट डेटा, इनिशियल करंट इसको हम I और स्मॉल I, इनिशियल करंट is equal to -5 ampere, final current, final current IF is equal to +5 ampere।
कितने टाइम में इनिशियल से फाइनल, वो है 0.05 सेकेंड्स। टाइम taken for change, delta t 0.05 seconds. Induced EMF, इन सेकेंडरी कॉइल, तो ये एप्सिलॉन और साथ ये इंड्यूस्ड EMF है। इसकी वैल्यू है 2.8 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? म्यूचुअल इंडक्शन। टू फाइंड में म्यूचुअल इंडक्शन, एम फाइंड। इसके लिए फार्मूला यूज जो होगा वो हमारे पास है एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू माइनस एम मल्टीप्लाई चेंज of current in the primary coil divided by, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है। इस प्राइमरी कॉइल में बैटरी है और ये रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर, जिसकी मदद से हम करंट चेंज कर सकते हैं। ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे हम करंट को चेंज करते हैं। इनिशियल करंट जो है -5 एम्पेयर है। करंट को चेंज करते हैं इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, इसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। इसको मूव करने से करंट चेंज हो। फाइनल करंट जो है वो है +5 एम्पेयर, और ये जो चेंज आ रहा है ये 0.05 सेकंड्स में आ रहा है। ठीक, अब हमें पता है कि जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगी, प्राइमरी कॉइल में, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये कुछ ना कुछ इस कॉइल को भी इफेक्ट करते हैं, और यहाँ पे EMF प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में। इस प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से वो जो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हुआ है वो कितना है? 2.8 वोल्ट। तो अब हमें यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारे पास इन दोनों कॉइल के दरमियान आएगा उसको फाइंड करते हैं। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना है, क्योंकि हमें म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करना है। तो हम इसको अब चेंज कर सकते हैं। ये M आप सपोज करें, आप इसको यहीं पर रहने दें। EMF अपनी जगह पे है,
इस वैल्यू को आप इस साइड पे लेकर आएंगे, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। और ये माइनस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसका ये फार्मूला प्रिपेयर्ड हो गया। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इस फार्मूले को मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे सही तरीके से लिखता हूँ, यानी m इज इक्वल टू चेंज इन करंट। अब चेंज इन करंट को आप अगर यहाँ पे पहले से फाइंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस पे आप फाइंड कर लें चेंज इन करंट, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, इनिशियल फाइनल करंट जो है वो 5 + 5 माइनस इनिशियल -5, माइनस माइनस प्लस, यानी 10 एम्पेयर करंट में चेंज आया है। अब ये तमाम वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। माइनस टाइम 0.05 एप्सिलॉन s 2.8 डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट 10, 0.05 multiply 2.8 divided by 10. 0.014 और म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट जो है वो हेनरी है। अगर हम इसे मिली हेनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर क्या करें, पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं 4 के बाद, 4, 1, 2 और 3 मल्टीप्लाई, पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी, 14 और 10⁻³ जो है ये मिली के लिए यूज़ होता है, प्रीफिक्स है। 10⁻³ मीन्स मिली, हज़ारवां हिस्सा। तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। Question 5. A transformer connected to 120 volt AC line is to supply 9600 volt for a neon sign. Part number A. What is the ratio of the secondary to primary turns of the transformer? पहले पार्ट नंबर ए फाइंड करते हैं, फिर पार्ट नंबर बी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन 5 में वोल्ट दिया है, ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। ये हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है वीपी 120 वोल्ट। हमें इस वोल्टेज को कन्वर्ट करना है 9600 वोल्ट में, यानी सेकेंडरी वोल्टेज जो हमें सेकेंडरी वोल्टेज वो है 9600 वोल्ट। पार्ट नंबर ए, ये हमारा डेटा है। टू फाइंड पार्ट नंबर ए के लिए ये डेटा है। What is the ratio of secondary to primary turns of the transformer? Number of turns in the
सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, इसमें क्या रेशो। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू वी एस बाय वी पी। सॉल्यूशन, वी एस 9600 डिवाइडेड बाय 120, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 9600 डिवाइडेड बाय 120 80, यानी पहला आंसर जो है वो आएगा एन एस। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड जो है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं रेशो फॉर्म में। यहाँ 80 है और नीचे आप इसको 1 कर सकते, यानी 80:1। प्राइमरी कॉइल अगर एक टर्न उसमें होगी तो सेकेंडरी में 80 टर्न होने चाहिए। तो ये हमें ये ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट को 9600 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब पार्ट नंबर बी इसका है, थोड़ा सा इसमें चेंज आए कि प्राइमरी वोल्टेज भी यही होगा, सेकेंडरी वोल्टेज भी यही है। इफ द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 275 प्राइमरी वाइंडिंग्स, number of turns in primary coil n लिख लेंगे उस साथ p। ये गिवन है 275। How many secondary windings would there be? To find मैं number of turns in secondary coil n और साथ ये s लिख लेंगे। सेम फार्मूला यूज़ होगा। एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू वी एस बाय वी पी। सॉल्यूशन, इसको रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड करने, ये वैल्यू साइड पे आ जाएगी। तो एन पी मल्टीप्लाई वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। पुटिंग द वैल्यूज, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, एन पी नंबर ऑफ टर्न्स 275, secondary voltage 9600 और primary voltage 120 275 multiply 9600 divided by 120 2200 टर्न्स हमें सेकेंडरी कॉइल में चाहिए। क्वेश्चन 6, हाउ मैनी टर्न्स वुड यू वांट इन द सेकेंडरी कॉइल? नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल ये फाइंड करने ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग 400 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स
number of turns in primary coil, वो 400. If we were to reduce the voltage, हमें वोल्टेज को कम करना है from 220 volt AC to 3.0 volt AC. Primary voltage हमें गिवन है VP, वो है 220 वोल्ट है. सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास है सेकेंडरी वो 3 वोल्ट. टू फाइंड में number of turns in secondary coil. ये फाइंड करते हैं. सेम फार्मूला यूज होगा. N S by N P is equal to V S by V P. Solution. Rearrange equation 1. N S is equal to V S by V P. ये वाली वैल्यू इस साइड पे आके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगी. अब हमने वैल्यूज पुट करनी. सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास गिवन था 220. Number of turns in primary coil 400. VS हमारे पास 3 है और प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास जो है वो 220. अब बस हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेते हैं. 0 0 12 4 3 are 12 and 2 2 0. तो 1200 divided by 220. तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल इज 5.4. अब हम इसे नंबर ऑफ टर्न्स तो या 5 हो सकते हैं या 6. तो आप या इसको 5 लिखते हैं, आप 5 टर्न्स कर लें या आप 6 टर्न्स कर लें ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिल सकें. क्वेश्चन 7. डेटा A transformer stepped down a main supply of 220 volt AC to operate a 12 volt AC lamp. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वोल्टेज VP, primary voltage given 220 volt.
हमें कन्वर्ट करना है, यानी सेकेंडरी वोल्टेज वो है 12 वोल्ट। टू फाइंड में कैलकुलेट द टर्न रेशो ऑफ द वाइंडिंग, यानी नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, ये रेशो फाइंड करनी है। फार्मूला N S by N P is equal to V S by Vp. Solution: putting values in equation 1, 220 प्राइमरी है और सेकेंडरी जो है वो 12। सिंपली इसको डिवाइड करना है। 12 divided by 220, 0.05, ये हमारे पास सेकेंडरी टू प्राइमरी जो कॉइल है उनके दरमियान रेशो है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी रेशो नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी इज इक्वल टू 0.05 रेशो, और इसके नीचे 1 होता है तो आप यहाँ पे 1 लिखें। इस तरह भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं।